Hello friends, welcome to Pi5 Study YouTube channel. Today we will discuss about increasing and decreasing function, maximum and minimum function and composite function. तो इन तीन प्रकार के फंक्शन का आज हम बात करेंगे। इन तीनों फंक्शन का यूज कहाँ पे हम कर सकते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी का हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो खासियत होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि आपने स्लोप पढ़ा होगा। अगर कोई फंक्शन y=f(x) दिया है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y=y' क्या होता है f'(x) और y' क्या होता है dy/dx। तो उसी प्रकार अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो स्लोप आपने निकाला है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है y का, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर किसी भी रेंज में वो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब उसका स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप के टर्म में किसी भी फंक्शन का स्लोप जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। किसी भी फंक्शन का स्लोप जब घटता है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। कुछ इस प्रकार से। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के अगर आपको दिया गया है कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस प्रकार का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको एक यह कंडीशन लगाना चाहिए कि dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ dy/dx इज लेस देन इक्वल टू 0, that means the given function is decreasing function. So in exams you may have asked this type of question, like it is said that function is decreasing, so which type of condition is apply. So you need to know about the condition of decreasing and increasing function. इन केस ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर इंटीग्रल में या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन की जो डिफिनेशन होती है, ए मोनोटोनिक फंक्शन इज ए फंक्शन बिटवीन द ऑर्डर सेट दैट प्रिजर्व और रिवर्स द गिवन ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो उसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तब भी वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इन दिस केस द फंक्शन इज कॉल्ड ए मोनोटोनिक फंक्शन। नेक्स्ट, इफ y = sin 4x plus cos x to the power 4, then find out the increasing and decreasing interval. So what you have to do for increasing, you have to apply the condition like y is greater than equal to 0, provided that dy/dx must be greater than 0. So in this case, when you apply the increasing condition of this function, then you will get in the second line 4 sin cube x. Just differentiate with respect to x. 4 sin cube x cos x minus 4 cos cube x sin x greater than equal to 0. Then take out the some common term, then you will get like this. So dy/dx is equal to minus sin 4x. So for increasing, dy/dx greater than equal to 0, minus sin 4x is greater than equal to 0, sin 4x less than equal to 0. So just see where the function, where plot the graph of sin 4x and find the interval for which this function is less than 0. And how you will find? I have earlier told the inequality condition, how to apply the inequality condition for the given number of for the given set of data. You can easily calculate. So if you forgot to solve the inequality condition, then go to previous module and learn.
then you can easily understand this. So next, for decreasing dy by dx less than equal to 0, so in this case just minus sine 4x less than equal to 0, then you will find for the interval of x for the interval of 0 to pi by 4, this function is decreasing function. So if you will plot the graph of sine 4x, then you can easily calculate the interval for which it is increasing, for which it is decreasing. Now find out the decreasing interval of the fx is equal to x e to the power x 1 minus x 1. Then so first step, calculate the dy by dx. So if you calculate the dy by dx, how you will calculate the dy by dx? In the differentiation chapter I will tell you in detail how to calculate the differentiation. So if you have any problem to do the differentiation of a function, then wait for some time, and either you can search that how to calculate the differentiation chapter, where I will tell you for the calculation of the for the finding the dy by dx of any function, of any function. और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है. तो अब जैसे इसका dy by dx निकालते हैं, तो दिस इज टू फंक्शन, x इज अनदर फंक्शन एंड e to the power x 1 minus it is another function. So you differentiate by part. So when you will differentiate by one, then you will get this, and then apply that condition for decreasing, then dy by dx is less than equal to 0. So just do the sum calculation and you will end up with this type of 2x plus 1 x minus 1 is greater than equal to 0. Now you have two set of brackets where you have 2x plus 1 and x minus 1. So from you just relate these things to inequality, how you have solved the factor part using the inequality. So just put the bracket thing is equal to 0, 2x plus 1 is equal to 0 and x minus is equal to 0. You have 2 point minus 1 by 2 plus 1 by 2, then plot this on the real number line, then put plus minus from the right, from the plus infinity to negative, from the plus infinity to minus infinity, then just write the value where you are getting the positive part, like x belongs to minus infinity to minus 1 by 2 union 1 to infinity. So minus infinity, it is written in open bracket, and minus 1 by 2 and 1 is written as in closed bracket. So it is kind of semi closed and semi open bracket. Now hx is equal to f cube x plus f square x, f plus fx plus 1. So what you have to do, just you have 4 options. So first what you will do, just calculate the h dash x, then it will become like this. So in this case, if f is increasing, actually h dash x is positive value. So if f dash x is increasing, that means h is increasing, and if f is decreasing, which means h is always decreasing. So in this way you can mark out your option. Now come to the fx is equal to sin x by x, gx is equal to tan x by x, interval 0 to pi by 2. Who will be increasing and who will increase and who will decrease? So plot the graph of both the function. Fx is equal to sin x by x and gx is equal to tan x by x. Then see from the plot. So from the plot you can see fx is decreasing function and gx is increasing function. So
plot is and the pattern of plot of an equation or a function is a very essential tool to apply the condition of increasing or decreasing function. You can easily identify by the graphical method. You do not need to do more calculation for this. Now we will come to the maximum and minimum function. So maximum और minimum function क्या होता है? मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है? अगर किसी कोई भी फंक्शन दिया है, सेट ऑफ फंक्शन दिया, उसका आप प्लॉट बनाइए और उसके प्लॉट में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको हमको लेना होता है, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम फंक्शन। अब आइए समझते हैं। जैसे अगर आपको दिया गया एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम इन करली ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। अब आपको इन दोनों साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले साइन एक्स बना दीजिए, फिर कॉस एक्स बना दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि हर एक इंटरवल में, जैसे एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर एक इंटरवल में जहाँ पे जो भी वैल्यू पॉजिटिव मिले, जैसे जो भी वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है उसको हमें लेना है, बाकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको छोड़ देना है। जैसे ग्रीन एरो जो शो कर रहा है वहाँ पे साइन और कॉस में देखेंगे तो साइन की वैल्यू सबसे ऊपर है, नो कॉस की वैल्यू ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस होगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साइन और कॉस में देखते हैं साइन की वैल्यू, साइन का ग्राफ ऊपर है तो उसको लेंगे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें कॉस की वैल्यू ऊपर मिल रही है तो ये वाला लेते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे साइन की वैल्यू ऊपर है। मतलब जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने जिन दो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो उन दोनों फंक्शन को प्लॉट कर दीजिए और एक्स को आगे बढ़ाते जाइए और एक्स के करस्पॉन्डिंग जो दोनों फंक्शन में जो ऊपर है, वाई की वैल्यू जिस फंक्शन के लिए मैक्सिमम है उस फंक्शन को रहने दीजिए अगर मैक्सिमम निकालना है। अगर मिनिमम निकालना है तो ऊपर वाले की बजाय नीचे वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, नीचे वाला फंक्शन जो जिस भी फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू कम है वो फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से वी कैन फाइंड आउट द maximum and minimum of this function. Now again if this is a question where 0 to 2 pi maximum sin x comma cos x into dx। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इनका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके लिए पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसको हर एक छोटे छोटे इंटरवल में आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है 0 से लेके π/4 पे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, π/4 से लेके 5 π/4 तक कौन सा फंक्शन आ रहा है, फिर 5 π/4 से लेके 2 π तक कौन सा फंक्शन है। तो ऐसे अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। 0 to 5/4 के लिए cos x मैक्सिमम था तो cos x dx कर देंगे, प्लस 5/4 से लेके 5 π/4 sin x इंटू dx इसको ले लेंगे, प्लस 5 π/4 से लेके 2 π में cos x मैक्सिमम था तो cos ले लेंगे। तो इस प्रकार से अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। अब ये जस्ट इंटीग्रेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन का चैप्टर हम थोड़ा सा आपको बाद में पढ़ाएंगे। जस्ट अगर आपको थोड़ा भी पहले से इंटीग्रेशन का नॉलेज है तो आपको इस चीज़ सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं भी पता है तो आप फंक्शन समझ लीजिए, आगे हम आपको बहुत ही बेसिक से बताएंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम mod x माइनस 1 mod x माइनस 2। पहले इसका ग्राफ ड्रा कर दीजिए अलग अलग का। mod x का ग्राफ ड्रा करिए, mod x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करिए, mod x माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करिए। ग्राफ ड्रा करना हमने आपको पहले बता चुके हैं। फिर अब हर एक x की वैल्यू के लिए जो यहाँ पे अब हमारे पास 3 फंक्शन है, mod x माइनस 1 एंड mod x माइनस 2। अब हर एक इंटरवल में जहाँ पे मिनिमम वैल्यू जहाँ पे आ रही है जिस भी फंक्शन की वही लेंगे, मैक्सिमम वाले को छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक mod x की वैल्यू है, फिर उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू है, फिर उसके और आगे जाएंगे तो mod x माइनस 1 की वैल्यू है। वैसे 1 से 2 के बीच में। तो मतलब क्या कि हर एक रेंज में जैसे 0 से लेके 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में इन तीनों
फंक्शन में जिसकी वैल्यू मिनिमम है उसको हमने रहने दिया, बाकी मैक्सिमम को हटा दिया। फिर आपको इस प्रकार ग्राफ बन के मिल गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉम्पोजिट फंक्शन। व्हाट इज द कॉम्पोजिट फंक्शन? इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का मतलब क्या है? कंपोजिट। जैसे नहीं होता कि दो चीज़ों को मिला के एक बना देना है, उसी प्रकार मैथमेटिक्स में हम दो फंक्शन को मिला के एक बना सकते हैं, चार को मिला के एक फंक्शन बना सकते हैं, 10 फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बना सकते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें एक से अधिक फंक्शन को मिला करके कोई फंक्शन लिखा गया हो। अब जैसे अगर आपको बताया गया कि एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमें क्या करना है? एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? तो अब क्या करना है कि इसका सिंपल सा तरीका होता है कि एफ ऑफ जी एक्स, इसको पढ़ा कैसे जाता है? अगर एफ जी एक्स लिखा गया, इसको पढ़ा जाता है एफ ऑफ जी एक्स। अब हमको क्या करना है कि पहले एफ को वैसे ही रहने देंगे और जी एक्स की वैल्यू रख देंगे जो फंक्शन दिया है। जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया, तो एफ ब्रैकेट में साइन एक्स। अब क्या करेंगे? एफ का अब साइन एक्स जो पूरा है, ये पूरे को हम ऐसा मान लें कि ये एक्स लिखा गया है ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में। अब जो एफ एक्स है ए टू द पावर एक्स, वहाँ पे एक्स के प्लेस पे साइन एक्स रख देंगे, तो इस प्रकार से ए टू द पावर साइन एक्स होता है। उसी प्रकार से अगर जी ऑफ एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या? पहले एफ एक्स लिख दिए, जी को ऐसे रहने दें, जी ओपन ब्रैकेट ए टू द पावर एक्स है। अब क्या यहाँ पे अब हमें जी का फंक्शन लिखना है। जी एक्स का फंक्शन क्या है? साइन एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के प्लेस पे ई टू द पावर एक्स लिखना है, तो इस प्रकार जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब अगर एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है, पहले एफ एक्स लिख दें ई टू द पावर एक्स, फिर अब हमें जो एफ एक्स दिया है ए टू द पावर एक्स, वहाँ पे एक्स के प्लेस पे ई टू द पावर एक्स लिखना है, तो इस प्रकार हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इस प्रकार हम दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। नाउ इफ इट इज रिटन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, सो फाइंड द एफ ऑफ जी एक्स। तो अब क्या करना है? एफ को ऐसे रहने देना है, एल एन एक्स को क्या करना है? वहाँ पे एल एन एक्स क्यों लिखा? क्योंकि जी एक्स की वैल्यू एल एन एक्स है। अब क्या करना है कि जो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, उसमें x के प्लेस पे एल एन एक्स रिप्लेस कर देना है, तो फाइनल क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एल एन एक्स। अब हमने आपको एल एन की प्रॉपर्टी बताई थी कि एल एन क्या होता है? लॉग एक्स बेस ई, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ई टू द पावर लॉग ई एक्स है, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? एक्स। उसी प्रकार अगर जी ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो जी वैसे रहने दें, एफ एक्स की वैल्यू लिख दें ई टू द पावर एक्स, फिर ई टू द पावर एक्स, अब यहाँ पे एक्स हो गया। अब ई टू द पावर एक्स को हमें जो हमने यहाँ पे जी एक्स एल एन एक्स लिखा वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो एल एन ई टू द पावर एक्स। सो एल एन को क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस ई, लॉग ई टू द पावर एक्स बेस ई। अब दोनों बेस इक्वल है, तो वो बाहर आ जाके 1 हो जाता है, बचता कितना है? एक्स। ये वो वैसे भी प्रॉपर लॉग की प्रॉपर्टी से भी हम x को बाहर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट एफ ऑफ एफ एक्स, अब एफ एक्स लिख दें एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, फिर एफ को हमें गायब करना है, तो एफ एक्स के फंक्शन में जहाँ पे x है उसके प्लेस पे ई टू द पावर एक्स लिख देना है। अब क्या होगा? ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन को कंबाइन किया है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो हम कहाँ से चलते हैं? एफ ऑफ जी लिखते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो एफ एक्स है उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे? एफ एक्स की जो वैल्यू दी है ई टू द पावर एक्स। फिर जी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? जी एफ ऑफ जी को हटाएंगे तो जी वाला फंक्शन लिखेंगे एल एन, लेकिन एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स लिखना है, जो ऊपर जी टू द पावर एक्स, जी ऑफ ई टू द पावर एक्स लिखा है, उसकी वजह से यहाँ पे एफ ऑफ एल एन ई टू द पावर एक्स लिखा। अब ये अपना एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू कितना है? टू द पावर एक्स। तो इस प्रकार से तीन फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, देन फाइंड आउट द एफ ऑफ एफ एक्स।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं, जो सबसे आखिरी वाला fx है वहाँ पे हम fx की वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स। अब क्या है 1/1 माइनस एक्स, इसमें इस पूरे को क्या करेंगे, हम x मान लेंगे और इस x को fx वाले में रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स के प्लेस पे 1/1 माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, f ऑफ x माइनस 1/x। अब फिर बात करते हैं, ये भी अभी f ऑफ x माइनस 1/x है। अब क्या करेंगे, f को हटाना, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 1/1 माइनस x के प्लेस पे हमें क्या करना, जो हमने रेक्टेंगुलर जो रेड से जो मार्क किया है उस पूरे फंक्शन को x के प्लेस पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस x माइनस 1/x। इसको थोड़ा टर्म अरेंजमेंट करके सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। नाउ इन सिमिलर वे इफ f(x) इक्वल टू a माइनस x टू द पावर n टू द पावर 1 माइनस m f ऑफ f(x). अब आपको करना क्या है, f(x) की वैल्यू जस्ट रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस x टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। देन अब ये पूरा x हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू जहाँ पे f(x) में x है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बचेगा, a माइनस x टू द पावर n होल टू द पावर n टू द पावर 1/n। तो इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू x। फिर एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिए। इसमें क्या करना है, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और g इक्वल टू साइन x है। अब f ऑफ g ऑफ x ऑफ f(x) इक्वल टू g ऑफ f(x), एक कंडीशन दी गई है। अब क्या करना, आपको लेफ्ट वाला भी लेके चलना, राइट वाला भी लेके चलना है। जैसे हमने बताया कि कंपोजिट फंक्शन को कैसे वैल्यू को पुट करनी होती, ऐसे पुट करते हुए जाएंगे तो कुछ मिलेगा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू n पाई, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा √n पाई। ये देखिए बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा आप खुद से सॉल्व करिए। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप हर एक फंक्शन, हर एक स्टेप को सॉल्व करिए, अपने आप आपको आंसर मिलता चला जाएगा। सो नाउ स्टार्ट लर्निंग ओनली ऑन पाई स्टडी। तो पाई स्टडी यूट्यूब चैनल की सहायता से आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। रही बात, अगर अभी तक आपने पाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को भी एक अवसर दे सकते हैं, जिससे वो इस वीडियो तक पहुंच सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो रही बात, लास्ट में एक चीज़ और है कि अगर जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं वो आप उन सारे कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवाइज करिए, जिससे इन सभी कॉन्सेप्ट का जो आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाला है उसमें आप अच्छे से उसको यूज कर सकें। तो जस्ट स्टार्ट योर लर्निंग ओनली ऑन पाई स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।